Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to all of you. Today we are going to discuss the barriers of listening. If I talk about if you are in a listening process, the barriers that could that could disturb your listening process, that is, first of all, if I talk about, that is noise. Noise can disrupt your listening, and you can misunderstood by the use of noise. If some noise is in the environment, this can cause a interruption in your listening process. So in your physical barriers, noise is a barrier of listening. Poor acoustics mean if you have आपकी जो समात है वो सुनने में बहुत कम है, you can't hear the low voices, low frequency voices, so this could be the barrier of your listening. Another is defective mechanical devices, mean if the devices that are producing sounds and the voices produced by the devices sometimes they are producing with disturbance, यानी जब आपके साथ कोई ऐसी आवाज़ पैदा हो रही हो जो कि डिस्टर्ब कर रही हो, तो हम कहते हैं कि वो आवाज़ जो है, तो वो क्या कर रही है, वो हमें डिस्टर्ब कर रही है. मसलन अगर आपके पास जो जनरेटिंग जो इंस्ट्रूमेंट है वो सही तरह से आवाज़ें पैदा नहीं कर रहा, तो इट मीन्स defective mechanical device that is causing disturbance during your listening process. Another is frequent interruption. If there is a frequent interruption during the your listening process, your listening could be in a problem, and this could cause a barrier. Another barrier is uncomfortable sitting arrangements. If the seating arrangement where you are sitting for the listening purpose and that sitting is not comfortable, mean it is causing disturbance, the voices are not clearly uh, receiving by your ears and you are not understanding, so this could be the another barrier of a listening. Uncomfortable environment, that could be also a barrier, that if the environment is not peaceful, you can't listen clearly the speaker, and this your listening could be in a disruption. Okay, the next is message overloaded. If the speaker is conveying sending some messages that are have a lot of information, which is in the form of various types of information, maybe you comprehend some of them and you didn't comprehend some of them. हो सकता है कि आप उसमें से कुछ समझ लें और कुछ ना समझ लें. तो when you are receiving a message, it should not be overloaded. if the message is overloaded, यानी उसमें एक मैसेज के अंदर बेशुमार इंफॉर्मेशन दी गई है, तो that could be a barrier for you people and your listening could not be good. So if you are delivering a message, you must always message in the form of a single information. So this could be a barrier of a listening. Features of listening. If I talk about features of listening, listening is a mental activity. It is improved by conscious and concentration. It could be improved by conscious method and with the help of concentration. So your listening is a mental activity that could be improved with the कॉन्शियसनेस एंड कंसंट्रेशन, यानी आप होशो हवास के साथ और तवज्जो के साथ अपनी लिसनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं. और लिसनिंग जो है दैट इज़ अ मेंटल एक्टिविटी. इट इम्प्रूव्स बाय कॉन्शियस एंड कंसंट्रेशन. इट इज़ अ स्किल एज इट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय एक्सपीरियंस. तो ये एक स्किल है जिसको आप एक्सपीरियंस के साथ इम्प्रूव कर सकते हैं. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आल्सो हेल्प्स इन लिसनिंग. लिसनिंग स्टिमुलेट स्पीकिंग. लिसनिंग जो है वो आपकी स्पीकिंग को अर्ज करती है. व्हेन यू लिसन अलॉट यू स्टार्ट टू स्पीक. लिसनिंग इन्वॉल्व्स पेइंग क्लोज अटेंशन टू द साउंड दैट कम इन वे ऑफ कम्युनिकेशन. लिसनिंग में आपकी वो तमाम साउंड्स रहती हैं जो आपके लिसनिंग के प्रोसेस में आती हैं.
So here is the process of listening, mean how the listening happens, mean first of all you remember the when you listen something, you remember the voices that you already have heard or listened, and then you elaborate in the form of evaluating, and then you formulate, and then you respond back. So this is the process of listening, how listening happens in your mind. It is the important listening process because it means that an individual added message to the mind storage. जब आप कोई मैसेज रिसीव करते हैं थ्रू योर ईयर, तो आप अपने माइंड में उसकी रिमेंबर करते हैं कि आपने इससे पहले क्या सुन रखा है, उससे एवेल्यूएट करते हैं, उसका अंदाज़ा लगाते हैं। तो जब आप उसके जज करते हैं तो देन आप बताते हैं कि ये किसकी आवाज़ है। पुअर लिसनिंग हैबिट्स में आ जाता है, फेकिंग अटेंशन होता है, लिसनिंग ओनली फॉर अ फैक्ट, अवॉइडिंग डिफ़िकल्ट एंड अनइंटरेस्टिंग मटेरियल, सो ऑल इज़ दिस प्रीटेंस लिसनिंग। व्हेन यू जस्ट ये बहाना करते हैं कि मैं सुन रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली आप कहीं और पहुँचे होते हैं। जैसे हम नमाज़ पढ़ते हुए हमारा ख्याल कहीं और चले जाता है, तो हम पढ़ तो नमाज रहे होते हैं लेकिन कहीं और पहुँच जाते हैं। इसी तरह आप किसी स्पीकर को सुन रहे हैं लेकिन आपका माइंड कहीं और सोचना है, तो ये प्रीटेंस लिसनर कहलाएंगे। सेलेक्टिव लिसनर, सपोज़ आपको सुनना है कि आपने एग्ज़ाम किस तरह अटैम्प्ट करना, आपके काम की बात अगर आपने सुन ली है तो उसके बाद बाकी आप नहीं सुनते। तो इस तरह जब आप किसी स्पीकर के मैसेज में से चंद चीज़ें जो हैं वो सुन लेते हैं और बाकी नहीं सुनते, तो वो क्या कहलाती है? सेलेक्टिव लिसनिंग कहलाती है। इम्पॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग स्किल, एन attentive listener stimulates better speaking by the speaker. Good listener learns more than an ordinary speaker. Good listener learns to detect prejudice, assumption and attitude. एक अच्छा लिसनर जो है वो तसब से बालातर होकर जो है वो रवैयों से बालातर होकर वो सुनता है। कम्युनिकेशन इज़ नॉट अ कंप्लीट विदाउट इफेक्टिव लिसनिंग। कम्युनिकेशन का प्रोसेस मौसर लिसनिंग के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। ट्रेड्स ऑफ अ गुड लिसनर, अच्छे लिसनर की कुछ खसूसियात हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय लिसनर, मीन लिसन, एल फॉर लुक, इंटरेस्ट, गेट इंटरेस्ट। जब आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट देखते हैं तो उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। इन्वॉल्व योर सेल्फ बाय रिस्पॉन्डिंग, अपना जो है रिस्पॉन्ड देकर, अपना जो जवाब देकर अपने आप को लिसनिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व करें। स्टे ऑन टारगेट, अपने जो टारगेट है, जिस मकसद के लिए आप लिसनिंग कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस रखें। टी फॉर टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, अपनी जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है वो डेवलप करें। ई इवेल्यूएट द मैसेज, एंड एन न्यूट्रलाइज योर फीलिंग, अपने जज्बात जो है वो न्यूट्रलाइज रखें ड्यूरिंग द लिसनिंग प्रोसेस। सो हियर इज़ द लिस्ट ऑफ बैरियर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। ओवर अंडर रीचिंग, नेक्स्ट इज़ स्टीरियोटाइप रिएक्शंस, मीन एक ही तरह के रवैयों से इज्तनाब करना। टेकिंग द स्पॉटलाइट, मीन एक ही जगह पर जब आप कोई बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसको स्पॉटलाइट बोलते हैं, उस पर फोकस। अनसूटेबल रिस्पॉन्सेज, बगैर किसी वजह के कोई ऐसी बात कर देना जिसका कोई लिसनिंग के साथ या स्पीकिंग के साथ कोई रिलेशन हो, तो अनसूटेबल रिस्पॉन्सेज होते हैं। प्रीटेंड कम्प्रीहेंशन, यानी आप बहाना करते हैं कि आपको समझ आ गई है लेकिन एक्चुअली आपको समझ नहीं आई गई होती, तो आपने दोबारा से पूछ लेना कि जी मुझे इसका दोबारा क्लियर करना। इम्पैक्ट नॉन वर्बल क्यूज़, जब आप कोई लिसनिंग के दरमियान जो नॉन वर्बल क्यूज़ हो रहे होते हैं, इशारे कर रहा होता है स्पीकर, तो उसका आप पर लिसनिंग पर क्या इफ़ेक्ट होता है। दिस कुड बी द बैरियर आर इफेक्टिव लिसनिंग प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सिव, पेचीदा जो आपके जवाबात होते हैं उनके ऊपर जो है वो लिसनिंग का ये भी एक बैरियर हो सकता है। फिज़िकल बैरियर हो सकते हैं, कल्चरल बैरियर हो सकते हैं, एनवायरमेंटल बैरियर हो सकते हैं। सो ऑल इज़ दिस। टेक्निक्स ऑफ लिसनिंग स्किल, फोकस ऑन की पॉइंट्स, जब आप लिसनिंग करें तो फोकस करें की पॉइंट्स के ऊपर। बीइंग अवेयर ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज, आपको वर्बल और नॉन वर्बल मैसेज के ऊपर जो है वो पूरी अवेयरनेस होनी चाहिए। लिसन विद एन ओपन माइंड, अपने खुले दिमाग के साथ सुने। अवॉइड फॉल्स अटेंशन एंड प्रीटेंडिंग टू लिसन, और बहाना से इज्तनाब करें, फॉल्स टेंशन से बाज रहें। वेट फॉर द स्पीकर टू पास टू आस्क क्लैरिफाई क्वेश्चन। बी अटेंटिव बट रिलैक्स, when you are in a listening process, be attentive but relax. Introduction to the listening, and I have already shared with you people types of listening. डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, व्हेन यू डिस्क्रिमिनेट कि ये मुझे, कि आपका कोई स्टूडेंट आपको पढ़ाना शुरू कर दे तो टीचर कहता है कि जी ये मुझे क्या पढ़ाएगा, मुझे तो आता है, तो वो डिस्क्रिमिनेट लिसनिंग करेगा, वो उसकी बात नहीं सुनेगा।
प्रीटेंस लिसनिंग, जिसमें आप कहते हैं कि आपको समझ आ रही है, आपको सब कुछ सुन रहा है, बट आप एक्चुअली इसको अंडरस्टैंड नहीं करते, ये प्रीटेंस लिसनिंग होती है। सेलेक्टिव लिसनिंग यानी जो आपके मतलब की इन्फॉर्मेशन होती है, जो आपके काम की इन्फॉर्मेशन होती है, वो आप सुन लेते हैं, बाकी नहीं सुनते, तो दैट इज़ कॉल्ड सेलेक्टिव लिसनिंग। अटेंटिव या एक्टिव लिसनिंग, दैट you focus on the listening process, this is called attentiveness. So these are types of listening. What is listening? The process of receiving, constructing meaning from and responding to a spoken and a non-verbal message, to hear something with thoughtful attention. जब आप कोई चीज़ सुनते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं और उससे कोई मीनिंग एक्सेस कर लेते हैं, तो सो दिस इज़ योर listening process. This was for today. I hope you have understand the idea about listening process. If you have any problem, you can discuss with me. The listening slides are there, you can read and understand. Thank you very much. Have a nice day. Jazakallah.